अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। और इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो सेकेंड थिंग वी विल स्टडी अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस में रेजिस्टिविटी की बात करेंगे हम। Resistors in series and resistors in parallel. So you can say resistors in series and in parallel. तो ये तीन टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। व्हाट इज मेंट बाय द पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने आपको कल एक एनालॉजी दिया था, तो उसमें सपोज वाटर इज फ्लोइंग। सपोज आपने वाटरफॉल तो देखा होगा। वाटरफॉल जो है, वाटर इज फ्लोइंग, just take the analogy that the flowing water is like a current. Okay, analogy, it's not current, basically you can take analogy from it. So water is we can say we can take analogy from water and charge. Similarly flowing water with current, because flow of charge is obviously current. And third thing is importantly height जो है, यहाँ पर suppose waterfall है, waterfall ऐसे, this is waterfall. So इस हाइट और इस हाइट में obviously there is the water which is present here, it has more potential energy than this one. Okay, so that's why there is a potential difference here. यहाँ पर potential difference है. This water, the water which is present here wants to go from higher potential to lower potential. So this water is flowing and you can draw an analogy here. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो flowing water है, यहाँ पर अभी similarly मैंने एक बैटरी रखा है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज रेजिस्टर। और तो जो ही मैंने सर्किट कंप्लीट किया तो यहाँ पर क्या होगा, द चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग। बट यहाँ पर एक चीज होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बेसिकली फ्लो फ्रॉम दिस टू दिस वन, बिकॉज दिस इज एट द हायर पोटेंशियल, दिस इज एट द लोअर पोटेंशियल, बट इलेक्ट्रॉन्स विल गो हियर। बट वी से दैट नॉर्मली करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एज पर द it's a convention here. So since there is a potential difference, that means the charges will flow. Here also there is a potential difference, gravitational, यहाँ पर चूंकि gravitational potential का difference है यहाँ पर, this is at the lower potential, this is at the higher potential, that means water will flow now. Now this flowing water, you can draw analogy between the flowing water and current. The potential difference between this and this, the potential difference is between this and this one. So this potential difference occurs because there is a difference in the obviously यहाँ पर क्या है, यहाँ पर potential difference है because of the gravitational force. Here the potential difference is because of this, because of you can say electrostatic force. तो यहाँ पर this is positive, this is negative terminal, तो इसके बीच में potential difference तो create हो जाएगा. So the charges will now start flowing from positive to negative. You can say simply that this charges will this electrons will flow from negative terminal to positive terminal. So this is resistor R, so current will now start flowing. So once we will complete the circuit. अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने सर्किट को यहाँ पर ब्रेकअप किया, यहाँ तो मैंने सर्किट यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो प्लग था मैंने इसको ओपन किया, तो क्या होगा यहाँ पर, सो दिस करंट विल नॉट फ्लो अनलेस एंड अंटिल द सर्किट विल नॉट बी कंप्लीटेड। रिमेंबर इट, करंट तभी फ्लो हो जाता है जब सर्किट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर सर्किट जो है कंप्लीट नहीं है। सो बैटरीज जो होते हैं नॉर्मली इनमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। सो दैट या बैटरीज जो हमारे पास होती हैं, मतलब घर में चाहे स्मॉल बैटरीज जो होते हैं जो बाज़ार में मिलती है, जो बड़ी बैटरी होती है जिसमें इन्वर्टर या बाकी चीज़ें जो हैं चलती हैं, तो उसमें क्या होते हैं, नॉर्मली केमिकल एनर्जी होती है।
chemical energy basically stored. So that chemical energy will be now, that is you can say you can convert that chemical energy into electrical energy. And similarly you can convert this electrical energy into chemical energy also. So during जब आप रिचार्ज करते हो बैटरी को, जैसे घर में सेल फोन में जो बैटरी रहती है या घर में जो बैटरी रहती है नॉर्मली जिसको हम चार्ज करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द केमिकल एनर्जी. आफ्टर देन अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, हम जो बैटरी की केमिकल एनर्जी होती है स्टोर्ड होती है, दैट्स नाउ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. So what is now the potential difference is basically the amount of work done in bringing a unit charge. सपोज आप क्या करोगे, आप सपोज इलेक्ट्रॉन एक लाओगे यहां से इस पोजीशन से लेकर यहां तक. सो यू आर बेसिकली डूइंग सम वर्क. सपोज यहां पर एक दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. यू आर ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज, बट यहां पर मसला है यूनिट चार्ज का. यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम. अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 into 10⁻⁻⁹. दिस इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम्स. अगर आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास होगा, सो 1 मोल इज 6.023 into 10⁻23. 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके पास कितना चार्ज होगा, दिस यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होगा. तो 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन होगा, 1 मोल जो है दैट इज 6.023 into 10⁻23. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू, सो दैट कम्स इक्वल टू 96487 समथिंग लाइक दैट, या 500. You can take approximate 96500. So this is also called as the Faraday's constant. तो 1 मोल जो आपके पास होगा इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हैज अ चार्ज ऑफ 96487 कूलम्स. ओके. Now since we are talking about potential difference, so potential difference में एक important चीज़ है. अगर आपके पास suppose this is here positive, this is negative here, so you have to calculate how much is the potential difference between these two. So you have to bring 1 unit charge, but here you have to bring 1 unit positive charge from this point to this point, 1 unit, but it has a charge of basically 1 coulomb. So you are bringing it from this point to this point. So if you are bringing it close to this positive charge, so this positive charge obviously it will repel this positive charge and this will attract. So you have to perform some work. So आप वर्क कर रहे हो अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, जो यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है, और दिस अट्रैक्शन, ये जो अट्रैक्शन है इसके अगेंस्ट भी आप जो है वर्क यूज कर रहे हो. सो यू आर बेसिकली स्पेंडिंग द वर्क. सो दैट इज स्टोर्ड इन, वो यहाँ पर स्टोर हो रहा है, इस ये जो पॉजिटिव यूनिट चार्ज है इसमें स्टोर हो रहा है. सो वंस यू आर ब्रिंगिंग फ्रॉम दिस टू दिस पोजीशन, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसके पास नेगेटिव पोटेंशियल, और यू कैन से नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि दिस इज बाउंड, यहाँ पर ये बाउंड है, दिस इज बाउंड हियर. बट वंस यू आर ब्रिंगिंग इट क्लोज टू दिस पॉजिटिव चार्ज, सो व्हाट विल हैपन, जब आप इसके यहाँ ले आ रहे हो इसको, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर, तो दिस एनर्जी विल बी स्टोर्ड हियर. सो हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन दिस unit charge is basically the amount of work done you have spent while bringing this charge from this point to this point, and that is basically the electric potential or the potential difference here. So similar, I can just give an analogy, simple. यहाँ पर suppose this is one floor, first floor of the building, this is first floor. दिस इज फर्स्ट फ्लोर. यहाँ पर सपोज एक ब्रिक है, दिस इज ब्रिक ऑफ 1 kg, दिस इज ब्रिक 1 kg.
सो दिस ब्रिक, अगर आप इसको, दिस इज एट द लोअर पोटेंशियल, दिस इज एट द हायर पोटेंशियल, so you are taking it from the lower potential to the higher potential, so you are basically spending that work, basically you are spending that work in bringing this brick from this position to this position against this gravitational force. so gravitational force नीचे है, gravitational force is ये इस तरफ है, so you are doing the work in bringing this brick from this position to this position. तो आपने यहाँ brick को यहाँ लाया. So how much amount of work you have done is basically the amount of energy that is stored in this brick as a form of potential energy. तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी that will be mgh. बट अगर आप यूनिट मास ले रहे हो 1 kg, वहाँ पर 1 कूलम आएगा ऐसा यूनिट, यहाँ पर 1 kg, so this will be gh and that is basically the gravitational potential here. Potential difference. So how much amount of work you have done in bringing 1 unit mass from this position to this position is basically the gradient in the potential. So यहाँ पर potential gradient होगा, because here the potential energy will be more as compared to this one. So अगर आप इसको release करोगे, you are just toppling it, तो यहाँ पर इसको ऐसे धक्का दोगे तो ये खुद गिर जाएगा. So ये इसके पास एनर्जी क्या है mgh, सो ये खुद गिर जाएगा. जब ये ज़मीन पे आएगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर. सो दिस विल बी द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड वंस यू आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन. तो इसके पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी, बट नाउ यू आर रिलीजिंग इट फ्रॉम द टॉप, सो इट विल नाउ स्टार्ट गेनिंग काइनेटिक एनर्जी. दिस विल, ये लूज़ हो जाएगा और ये गेन हो जाएगा. जब ये बॉटम पे आएगा तो ये ज़्यादा होगी, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली इसके पास खाली काइनेटिक एनर्जी होगी. जब ये ज़मीन पे आएगा पोटेंशियल एनर्जी विल बी नाउ, इट विल बी ऑब्वियसली ज़ीरो. बट एज ए रेफरेंस हियर वी आर टेकिंग ग्राउंड एज ए रेफरेंस. एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी यहाँ भी ज़ीरो नहीं होता है, बट इफ़ वी स्टार्ट टेकिंग रेफरेंस हियर, यहाँ पर अगर हम रेफरेंस रख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो, तो यहाँ पर जो भी हाइट है, सपोज 1 मीटर पे क्या होगा mgh, यू हैव टू मल्टीप्लाई mg, सपोज दिस इज 1 यूनिट मास, तो यहाँ 1 kg होगा, सो दिस विल बी g. 2 मीटर्स पे 2g होगा, ऐसे ही. फिर उसके बाद सपोज 3 मीटर्स पे ऐसे ही इसका इंक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट इज ओम्स लॉ. देखो अगर मेरे पास एक, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सो हियर वी आर कनेक्टिंग ए रेजिस्टर. और मैंने यहां पर एक एमीमीटर रखा है. रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग, एमीमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज टू द रेजिस्टर एंड वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पैरेलल. वोल्टमीटर अगर होगा तो मैं यहाँ पर वोल्टमीटर इसको कनेक्ट करूँगा, इसको पैरेलल में. एमीमीटर में सीरीज में रखूँगा. वाई? सिंपल, बिकॉज एमीमीटर्स मेजर द करंट दैट इज फ्लोइंग इन द रेजिस्टर. सो यहाँ पर, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, द रेजिस्टेंस ऑफ एमीमीटर शुड बी एज नेग्लिजिबल, एज स्मॉल एज पॉसिबल, बिकॉज देन इट विल स्टार्ट इम्पीडिंग द करंट. रजिस्टर का काम क्या होता है? रजिस्टर का काम होता है बेसिकली इट ऑफर्स द, इट इम्पीड्स द करंट, इट स्लोज डाउन, यू कैन से इट डज नॉट वांट द करंट टू, इट डज नॉट वांट द चार्जेस टू फ्लो हियर. तो करंट ऐसे जा रही है, एक्चुअल तो करंट यहाँ है ऐसे, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग दिस वन, बट एज पर द कन्वेंशन विच हैज़ बीन अडॉप्टेड, सो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. तो ये करंट एमीमीटर के थ्रू भी जाएगा ऐसे, उसके बाद ऐसे. सो दिस इज रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस आर है. अगर ये रेजिस्टेंस बहुत कम होगी तो ऑब्वियसली दैट मीन्स इट डज नॉट impede the current too much. But if we are talking about some insulators, इंसुलेटर की अगर हम बात करेंगे, सपोज डायमंड या इबोनाइट, हार्ड रबर, तो उसकी हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली दिस विल नॉट, द करंट विल नॉट फ्लो एंड एमीमीटर यहाँ पर शो करेगा रीडिंग, तो दिस विल शो ज़ीरो रीडिंग यहाँ पर एमीमीटर.
But if we are talking about a good conductor like silver or gold or copper, so ammeter will start showing the current, okay, depending upon the resistance, depending upon voltage across this one. So यहाँ पर this is having the voltage V. So how much amount of basically current is flowing in this circuit? How much amount of current is flowing in this circuit? So current कितना है इस circuit में? It will be directly proportional to, you can say it, voltage which is applied. Voltage जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा current होगा. So this will be directly, you can say it V. But resistance ज़्यादा होगा तो करंट कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा होगा. दैट मीन्स you have to divide it with R. So simply this is the Ohm's law. Ohm's law means how much amount of current is flowing in a circuit is basically dependent on the voltage that you are applying across the resistor and the resistance offered by the circuit. Sorry, you have to divide the voltage with the resistance. So I is equal to V by R, or V is equal to IR. आपने मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन पढ़ी होगी y is equal to mx. यहां पर क्या है, V is equal to IR. m जो है दिस इज स्लोप एंड दिस इज कांस्टेंट. y and x basically these are variables, so you can change x, so y correspondingly changes. Similarly you can change the values of R, the V values, I and V values can change, but R remains constant. So here you can pull out the graph. So this is Y versus X. Y versus X. So Y is equal to mx का ग्राफ ऐसे होगा. So this is theta and tan theta will give you m. So slope will give you m. So now अगर हम बात करेंगे इसकी V वर्सेस I, वोल्टेज वर्सेस करंट. So this is V versus I. So here you can change voltage, current will be changed, but resistance will not change. But basically it changes because of some reasons. क्योंकि जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा. करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो क्या होगा, अगर आपके पास रेजिस्टर है, अगर आपके पास अच्छा कंडक्टर है तो उसमें क्या होगा, उसमें हीटिंग ज़्यादा होगी. हीटिंग ज़्यादा होती है तो हीट से क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होती है दैट आल्सो चेंजेस. अगर आपके पास गुड कंडक्टर है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, ये है, आपके पास आयरन है या एल्युमिनियम है, तो उसमें क्या होता है, हीटिंग की वजह से क्या होता है, द रेजिस्टेंस चेंजेस, द रेजिस्टेंस ऑब्वियसली इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस उसमें इंक्रीज हो जाता है. तो दैट मीन्स यू कैन से दैट दिस इज ऑल्सो नॉट कॉन, बट एज पर योर बुक्स यू कैन से दैट रेजिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट, बट हियर आई एंड वी चेंज. सो ये थीटा है, दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू so this is Ohm's law. Okay, so tan theta is equal to slope is equal to R, okay, is equal to V by I, obviously V by I. अब सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं और मेरे पास मुझे रेजिस्टेंस निकालिए, रेजिस्टेंस कितनी होगी. सपोज मेरे पास एक रेजिस्टर है, और मैं क्या ले रहा हूं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. सपोज मैं यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है, सो वोल्टेज सपोज V इज 2 वोल्ट, और यहां पर एमीमीटर है, एमीमीटर A है,
so it is connected in series. So ammeters measure the current. So current है suppose 1 ampere, करंट दे रहा है 1 एम्पियर. उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, जो वोल्टेज है यहां पर मैं बढ़ा रहा हूं. अब मैं वोल्टेज जो वोल्टेज है यहां पर, सो आई एम कीपिंग द वोल्टेज एज 24 वोल्ट. So voltage is now 4 volts. So I am measuring now the current. So current will be equal to, suppose current is 2 ampere. Now I am increasing the voltage. मैं 6 वोल्ट रख रहा हूँ. So I am just now changing the voltage. And this is now suppose 6 volt. So current suppose यहाँ दिखा रहा है 3 एम्पियर. अब मैं सपोज वोल्टेज फिर से बढ़ा रहा हूँ. वोल्टेज में बढ़ा रहा हूँ. यहाँ पर मैंने रखा, अब पहले रखा मैंने 2 वोल्ट, उसके बाद 4 वोल्ट, उसके बाद 6 वोल्ट. अब मैं आई एम कीपिंग इट एज 8 वोल्ट. सो सपोज करंट इज इक्वल टू 4 ampere. Now I have to plot this one, V versus I, and I have to calculate basically the resistance. What is basically the resistance? अगर आप देखोगे V by I is constant everywhere. V by I is 2 by 1 is 2, 4 by 2 is 2, 6 by 3 is 2, 8 by 4 is 2. That means resistance is the resistance offered by the circuit is basically 2 ohms. So अब मैं now I will start now plotting. So this is V, this is I. So this is suppose 1 2 3 4 5 6 7 8. उसके बाद करंट 1 2 3 4. सो वोल्टेज इज 2 वोल्ट, करंट इज 1 एम्पियर. 2 मतलब यहाँ और करंट 1, सो मतलब यहाँ पर पॉइंट आएगा. वोल्टेज इज 4 वोल्ट, करंट इज 2 एम्पियर. तो 4 मतलब यहाँ पर आएगा. उसके बाद 6 और 3, 6 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो मतलब यहाँ पर आएगा. उसके बाद 8 और 4, मतलब यहाँ 4 ये है और 8 ये है, तो मतलब यहाँ पर आएगा. सो नाउ आई एम कनेक्टिंग दीज 4 लाइन्स. So when I am connecting this one, so what you have to do, you have to measure this angle. So this will be theta, and you have to calculate the tan theta. So tan theta will be equal to, tan theta is equal to slope of line is equal to R. So this will be equal to 2. This will be obviously equal to 2. देखो कैसे, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक ये altitude है, this one. So this is a triangle here. So this is altitude or perpendicular. So tan theta is equal to perpendicular by base. So perpendicular कितना है, यहाँ से यहाँ तक, this is 8 divided by base. 4 minus 0 is 4. So this is 2. और सिंपल यहाँ भी ये ट्रायंगल भी ले सकते हो. सो दिस विल बी इक्वल टू 6 by 3 is equal to 4 by 2 is equal to 2 by 1. So this is overall constant. So this is 2. That means the resistance of the circuit is 2 ohm. So what Ohm's law states? Ohm's law states basically that the current, you can say a voltage across a resistor
is basically the you can multiply current flowing through the circuit multiplied with the resistance, or V you can say V is directly proportional to I. What is the voltage across a resistor? Is directly proportional to the current, so V is equal to I into R, or R is equal to V by I, or I is equal to V by R, whatever. This is also correct, this is also correct. So these are the three forms of Ohm's law. Now actually एक चीज़ है यहाँ पर. So wire is basically this resistance coming into the picture. So resistance कैसे आता है? देखो कोई भी मटेरियल होता है, जैसे कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर अगर हम बात करेंगे, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सिल्वर, Ag, सिल्वर, और वी आर टॉकिंग अबाउट सपोज अल्युमिनियम, Al. We cannot say that what is the resistance of silver or what is the resistance of aluminum, because obviously resistance depends upon the length, it depends upon the cross sectional area. So we don't know basically the material. जो मटेरियल हमारे पास पता है, सपोज एल्युमिनियम है या सिल्वर है, बट वी डोंट नो बेसिकली व्हेन वी आर पुटिंग इट इन द सर्किट, वी डोंट नो इट इज लेंथ, हाउ व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज basically the cross sectional area. So we are basically now interested in the resistivity. Resistivity is basically fixed for a material. तो resistivity इसके लिए फिक्स है, इसके लिए भी फिक्स है. So अगर हम resistivity की बात करेंगे, so that is denoted by rho. So यहाँ पर सिल्वर की बात करेंगे, that means this is almost 1.6 into 10 raised power minus 8 ohm meter. अगर हम एल्युमिनियम की बात करेंगे, this is almost 2.63 into 10 raised power minus 8 ohm meter. अगर हम डायमंड की बात करेंगे, या वी कैन से डायमंड की बात करेंगे, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 10 raised power 12 to 10 raised power 13 ओम मीटर. सारा देखो ये कितना स्मॉल नंबर है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस इज 0.00000016 ohm meter. So this is very small in comparison to 1. This is very very small, and in comparison to 1 this is very very huge. This is 1 and 12 zeros. See the resistivity of diamond and the resistivity of silver. That means the resistivity of silver is very very small and the resistivity of diamond is very very large. That means we can say that this is, you can say that this is a insulator. This is insulator and this is conductor. But there are some materials that lie between conductors and insulators, so they are called as the semiconductors. Semiconductors का यूज़ होता है, जैसे डायोड्स में हम यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर्स में यूज़ करते हैं. तो फिलहाल आपको पढ़ना नहीं है, आपको खाली ध्यान रखना है कि कंडक्टर्स जो होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ बैड कंडक्टर्स ऑफ electricity. Why? So because in conductors there are free electrons, so in insulators obviously there are no free electrons. कंडक्टर्स में अगर हम एग्जांपल लेंगे अल्युमिनियम की, अल्युमिनियम का अगर हम देखेंगे, सपोज अल्युमिनियम की अगर हम बात करेंगे, तो अल्युमिनियम का जो एटॉमिक वेट है दैट इज 27, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8, उसके बाद 3, और उसका जो एटॉमिक वेट है दैट इज 27 AU. So 2, 8 and 3. So these three basically these are free electrons in the outermost shell. That's why basically aluminum is a, you can say it wants to donate these 3 electrons. So but these are free electrons, so they form the C of electron. आप पढ़ोगे आगे 11th क्लास में. So जैसे C मॉडल है एक, तो उसमें basically these electrons they are free. outermost जो electrons होते हैं outermost shells में,
तो दे आर फ्री एंड दैट्स वाई दे कंट्रीब्यूट। यहाँ पर जब यू आर पुटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस है कंडक्टर, सो बेसिकली दीज इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन द फ्लो ऑफ करंट। So this is all about Ohm's law. Now suppose आपके पास क्वेश्चन आएगा, मेरे पास एक बैटरी है, ये क्वेश्चन है, सो दिस इज 100 वोल्ट, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। ये जो रेजिस्टर है R, सपोज दिस इज 25 ओम। आपके पास क्वेश्चन आएगा व्हाट विल बी द करंट दैट विल बी फ्लोइंग इन दिस सर्किट, करंट कितना होगा, और साथ में एक असम्पशन दिया होगा द रेजिस्टेंस ऑफ दिस एमीमीटर इज ऑलमोस्ट इज नेग्लिजिबल। तो ये जो एमीमीटर है यहाँ पर मैंने रखा सीरीज में, सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एमीमीटर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। So suppose this is 0.0001 ohm suppose. So in comparison to 25 ohms, this you can neglect. अब मसला है मुझे निकालना है करंट कितनी होगी। So what will be the current that will flow in this circuit? So current कितना होगा, current is equal to voltage applied, voltage कितना है across the resistor, so this is 100। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा वोल्ट, कभी वोल्ट में ये वोल्ट में दिया है, सो यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द, सपोज दिस इज एसआई यूनिट, वोल्टेज का जो एसआई यूनिट है दैट इज वोल्ट। लेकिन अगर सपोज मिली वोल्ट दिया होगा MV, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 10⁻³ बट सिंस इट इज गिवन इन द वोल्ट, या कभी माइक्रो सपोज मिली वोल्ट्स में दिया होगा तो मिली में आपको 10⁻³ या डिवाइडेड बाई, यू हैव टू डिवाइड इट विथ 1000। सो 100 वोल्ट मीन्स 100, यू कैन से 100 वोल्ट डिवाइडेड बाई, यहाँ पर रेजिस्टेंस 25 ओम्स, क्योंकि ओम दिया है तो दैट मीन्स यू कैन डिवाइड इट विथ 25 ओम हियर। बट अगर कभी दिया होगा मिली ओम या माइक्रो ओम, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 10⁻³ एंड 10⁻⁶ respectively. So here what will be the answer? This is 25 ones are 25 fours are, so this is 4 V by ohm is, that is ampere. So this is the current which will flow here, it will be 4 amperes. So V is equal to IR, R is equal to V by I, or I is equal to V by R. So these are all the 3 forms of Ohm's law. Simply Y is equal to mx, x is equal to y by m is equal to y by x, or y is equal to mx. So these are the different. Similarly here also you can say that V is equal to IR, or R is equal to V by I. Now there is one important thing, that is resistors in series and resistors in parallel. Resistance or resistors in series and in parallel. मेरे पास सपोज एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसको मैं सीरीज में रख रहा हूँ। सीरीज मतलब इसका जो कनेक्शन होगा, दूसरा कनेक्शन मैं ऐसे ले रहा हूँ, दिस इज R2, और मेरे पास एक तीसरा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R3 है, दिस इज R3। across the 3 resistors, these 3 resistors, these are in series. इसको मैंने यहाँ से जोड़ दिया, इसको मैंने यहाँ से जोड़ दिया, और तीनों को मैंने कनेक्ट किया। यहाँ इसका जो R1 का जो एक एंड है और R3 का जो एक एंड है, इसको मैंने कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ जिसका वोल्टेज V है। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया कन्वेंशनल करंट इस तरफ होगी, कन्वेंशनल करंट इस तरफ,
but basically current is flowing in this direction, electrons are flowing in this direction, but we are talking about the conventional current. Conventional current means flow of positive charges from this end to this end. So we can say current is flowing in this direction. अब जरा देखो, करंट इस तरफ आ रहा है, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ आ रहा है. करंट इसमें से जाएगा, उसके बाद इसमें से, और उसके बाद इसमें से जाएगा ऐसे, और उसके बाद वापस ऐसे आएगा. जो करंट इसमें जा रहा है आई, वही इसमें भी जा रहा है, वही इसमें भी जा रहा है, बिकॉज दीज आर ऑल इन सीरीज. इसका जो जोड़ है यहाँ इसके साथ है, इसका इसके साथ है. सो देयर इज वन, जस्ट वन सर्किट हियर, एक ही सर्किट है यहाँ पर, और तीनों के तीनों रेजिस्टेंस जो मैंने सीरीज में रखे हैं. सो मुझे अभी देखना पड़ेगा कि एक्चुअली नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी. व्हाट विल बी द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस वन. सो नेट रेजिस्टेंस, सपोज इसको मैं इन तीनों रेजिस्टेंस का सपोज जो टोटल समेशन है दैट इज सपोज आर. And this is here positive, this is negative, this is current I. जरा देखो, यहां से यहां तक across this resistor R1 there is current I which is flowing. so यहां पर कितना वोल्टेज डिफरेंस होगा इसके थ्रू, सॉरी across this resistor, what will be the voltage difference, or we can say potential difference between this and this point. so what will be it, यहाँ और यहाँ, इस और इसके बीच में. so what will be it, it will be V1, it will be V1. so the potential difference across this A and B, what will be the potential difference across AB, so that will be V1, voltage V1. एंड चलो इसको रब कर लेते हैं, इसको दूसरे तरीके से हम समझाते हैं. सो V1 इज इक्वल, V1 किसके बराबर होगा, V1 विल बी इक्वल टू करंट I विच इज फ्लोइंग इन दिस वन. सो दिस इज I इंटू R1. सिमिलरली वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इसके और इसके बीच में कितना होगा, करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, वही आई जो यहाँ फ्लो हो रही थी वही यहाँ भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई है R2. सो V2 इज इक्वल टू I R2. Why? Because the same current is flowing, but here resistance is different. Now here in R3, so V3 is equal to from here to here, so this will be equal to I R3. So the voltage across AB is equal to IR1 across B, suppose C, and CD is BC is across BC is, so this is IR2, across CD is IR3. Now what you have to do, voltage across this one, across this one, across this one is basically this voltage. यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टोटल वोल्टेज है ना, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज बेसिकली V. सो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V. सो V1 इज इक्वल टू, यू कैन कीप इट एज IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इज इक्वल टू, वोल्टेज कितना होगा V इज इक्वल टू IR, आपको पता है, बट यहां पर मसला है R में क्या लूंगा, R विल बी द टोटल रेजिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू करंट I है एंड R नेट.
जो टोटल रेजिस्टेंस है. So this will be equal to R net, total resistance of the circuit. So that I have to multiply it with I to get this one. So अगर आप देखोगे यहाँ पर so this will be equal to I into R net. This is the net resistance offered by the circuit. Basically this circuit has three resistors that are connected in series. So this will be equal to I यहाँ कॉमन निकालो. I मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या रहा, R1 प्लस R2 प्लस R3. I cancel, so R net is equal to R1 plus R2 plus R3. So this is the net resistance. So in case of, so you note down important thing. So when resistors are connected in series, same current flows in all the resistors. When resistors are connected in series, same current is flowing in all the resistors. But if all the three are having this different resistors, they are having the different resistances, so what will happen? तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा, अगर सपोज अलग अलग होगा, इसका R1 है, R2 एंड R3 है, तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल बी डिफरेंट. रिमेंबर इट. नाउ वी विल कनेक्ट ऑल द थ्री रेजिस्टर्स इन पैरेलल. Resistors in parallel. What will happen now? So resistance in parallel, in parallel, connected in parallel. So now we will see what will happen. यहाँ पर मैंने क्या किया, एक this is resistance R1, this is R2, this is R3, this is point A and B. जरा देखो यहाँ पर, गौर से देखो. यहाँ पर मैंने एक वोल्टेज जो है दिया है, एक वोल्टेज विथ वोल्टेज, दिस वन V वोल्टेज है यहाँ पर, और आई हैव कनेक्टेड थ्री different resistors here in the parallel. So all the three are having the resistance of R1, R2 and R3 respectively here. So this is in the parallel. अगर यहाँ से सपोज करंट फ्लो हो रही है, करंट अगर यहाँ से फ्लो हो रही है, जो ही यहाँ पर आ जाएगी, आधी करंट यहाँ से जाएगी, आधी करंट यहाँ से जाएगी, आधी करंट यहाँ से जाएगी. इट इज़ लाइक सपोज मेरे पास एक पाइप है, वाटर पाइप, तो मैंने 3 पाइप्स और इसके साथ जोड़े हैं. These are 3 pipes. So अगर यहाँ से पानी जा रहा है, आधा पानी इसमें जाएगा, सपोज कुछ पानी इसमें जाएगा, फिर आधा इसमें जाएगा, जो बचा कुचा पानी होगा वो इसमें जाएगा. लेकिन अगर मैं सपोज एक पाइप है, इसके साथ दूसरी पाइप जोड़ रहा हूँ, उसके बाद तीसरी पाइप जोड़ रहा हूँ, तो जो पानी इसमें जाएगा वही तो इसमें जाएगा, वही तो इसमें जाएगा. तो सिमिलरली हियर व्हेन आई एम कनेक्टिंग it in parallel, so part of this current will be drained across this one. तो यहाँ से I1 जाएगा,
I2 यहाँ से जाएगा, जो बचा कुचा होगा, बचा कुचा कितना रहेगा, दिस इज I माइनस I1 माइनस I2, सो दिस इज द लेफ्ट ओवर, ओके। यहाँ पर I माइनस I1 माइनस I2, जो बच गई करंट तो वो कहाँ से जाएगी, वो R3 के थ्रू जाएगी यहाँ पर। बट इफ यू विल रियलाइज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, across this resistor, across this resistor, across this resistor is same. Potential difference across this and this is same, and that is V. It is across this one, okay. So now what we are going to use this Ohm's law here. So in case of when resistors are connected in parallel, सीरीज में क्या था, सीरीज में करंट सेम थी, वोल्टेज डिफरेंट थी। यहां करंट अलग अलग है, करंट अलग अलग है क्योंकि मैंने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया है, बट द वोल्टेज अक्रॉस ऑल द थ्री रेजिस्टर्स विल बी सेम। सो हियर इन पैरेलल ऑल द वोल्टेज अक्रॉस all the three resistors is same. However current will obviously, current तो यहाँ पर current इसमें suppose I1 है, I2 है, I3 है, if all the three resistors are having the different resistance, so current will be obviously different. अगर same होगा R और R, voltage will be same and the current which will be here, this will be I1, this will be I2, this will be I3, but these I1, I2 and I3 will be same. So here I by 3 will go through this one, I by 3 will go through this one, and obviously जो बाकी बचा है that is I by 3. So this will be then, इसका डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही होगा डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस. तो अगर सपोज R1 कम है, रेजिस्टेंस R1 जो है दिस इज सपोज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू R2 एंड R3, तो I1 ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू I2 एंड दिस वन. इनमें से, इन तीनों में से जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वहाँ से ज़्यादा करंट जाएगी. अगर सपोज R2 बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू R3 एंड R1, तो दैट मीन्स R1 और R3 में बहुत ज़्यादा करंट जाएगी, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो अक्रॉस R2. अगर मैंने R2 की जगह इंसुलेटर रखा तो यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगी, तो I जो है दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू I1 एंड I माइनस I1. Now we will use Ohm's law and we will see what is the R net here. अगर आप देखोगे R net किसके बराबर है, R net that is equal to V by I. Obviously voltage divided by current, करंट कितनी है दैट इज इक्वल टू R net, लेकिन इन तीनों का भी है, इन तीनों को मिला के वो कैसे होगा. सो R net वी हैव टू फाइंड इट. सो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस वन, सो दैट इज V. सो V इज इक्वल टू I1 R1. सो I1 कितना होगा, V by R1. Similarly, V is also equal to I2 into R2. V is also equal to I2 into R2. So I2 किसके बराबर आएगा, V by R2. And similarly, voltage across R3 is V is simply the voltage across R1 is equal to R2, voltage across R1, voltage across R2, voltage across R3, and this V it is same. So similarly, V3 is equal to I3 into R3, that means R3 is equal to V3 by I3.
सॉरी यहाँ पर लिखो आप I3 इज इक्वल टू V3/R3. So you know here I is equal to I1. So suppose this I minus I1 minus I2, it is equal to suppose I3. So we know that this current is distributed into 3. यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है I1 में, I2 में, I3. दैट मीन्स I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. सो I कितना है? I यहाँ पर दिस इज द नेट करंट, टोटल करंट. सो दिस I इज इक्वल टू V/R नेट इज इक्वल टू I1 कितना है? I1 इज V/R1 प्लस I2 कितना है? V/R2 प्लस I3 कितना है? V3/R3. Sorry, this is not V3, this is V, because voltage is same here everywhere. So this is also V. So this is V. Because when we are connecting 3 or more suppose resistors in parallel, so voltage across all the resistors it is same. So V को कॉमन निकालो यहाँ से. So this is V/R net. यहाँ से V को कॉमन निकालो तो V कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. V and V gets cancelled. So this will be equal to 1/R net is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. अगर आपके पास सपोज n रेजिस्टर्स हो गए, इफ देयर विल बी n रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, सो n रेजिस्टर्स में क्या आएगा? n रेजिस्टर्स में क्या आएगा? R1/R net is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 plus 1/R4 plus dash 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 up to 1/Rn. आपके पास अगर सपोज 2 रेजिस्टर्स हो गए, 2 रेजिस्टर्स में क्या आएगा? 1/R net इज इक्वल टू 1/R1. 2 ही है खाली, अगर हमारे पास खाली 2 रेजिस्टर्स होंगे, सो दिस विल बी 1/R2. सो दिस विल बी इक्वल टू 1/R net इज इक्वल टू R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2. सो आपको R net निकालना है, तो R net इसका R net विल बी इक्वल टू R1 R2, इसका इन्वर्स ले लो तो यहाँ भी इन्वर्स हो जाएगा, इक्वल टू R1 प्लस R2. ओके. सो हियर जो न्यूमरेटर होगा इसका डायमेंशन जो इसका जो यूनिट आएगा ये आएगा, यहाँ पर ओम स्क्वायर आएगा, लेकिन नीचे R1 प्लस R2 यहाँ पर ओम आएगा. यार वी आर एडिंग ओम विथ ओम, इट विल बी ऑब्वियसली सपोज यहाँ पर R1 और R2 को जो ऐड करेंगे तो यहाँ पर ओम ही आएगा, यहाँ पर ओम स्क्वायर आएगा. तो ओम स्क्वायर को डिवाइड करेंगे ओम से, तो यहाँ पर ओम आएगा. तो दिस विल बी R net विल बी इन ओम्स. So in the next class we will study about heating effect, power and resistivity of different materials.